My lovely students, welcome to another session of quantitative decision making sessions. The set in this session is from XAT 2015. Let us start reading the set. Bright Engineering College BEC has listed 20 elective courses for the next term and students have to choose any 7 of them. So there are total 20 elective courses and a student has to choose any 7. Simran, a student of BEC, notices that there are 3 categories of electives: job-oriented, quantitative-oriented and grade-oriented. J, Q and G. There are total 3 categories. Among these 20 electives, some electives are both job and grade-oriented but not quantitative-oriented, JG type, which implies कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेट थ्योरी अप्लाई करना है, अल्टीमेटली वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिकॉज J, Q, G इनिशियली में दिया है, 3 कैटेगरीज हैं. देन अमंग दीज 3 categories, among these 20 electives, some are job and grade oriented but not quantitative oriented, JG type. QJ type electives are both job and quantitative oriented but are not grade oriented, and QG type electives are both quantitative and grade oriented but are not job oriented. Simran also notes that the total number of QJ type electives is 2 less than QG type electives, and similarly the total number of QG type electives is 2 less than JG type electives. And there is only one common JQG among all 3 categories. Furthermore, the number of only quantitative oriented electives is same as only job oriented electives but less than the number of only grade oriented electives. That is what the information is. Each elective has at least one registration and there is at least one elective in each category or combination of categories. That is what the question is saying. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो पहली चीज क्या कह रहा है, ईच इलेक्टिव हैज एट लीस्ट वन रजिस्ट्रेशन, यानी कम से कम एक रजिस्ट्रेशन जरूर होगा. ऑन सेकंड, देयर इज एट लीस्ट वन इलेक्टिव इन ईच कैटेगरी और कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरीज, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल जेजी टाइप में देयर शुड बी एट लीस्ट वन इलेक्टिव, एटलीस्ट वन तो होना चाहिए. क्यूजे में भी एटलीस्ट वन होना चाहिए. तो एटलीस्ट वन इज ऑलवेज देयर इन एवरी कैटेगरी और कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरीज. सो क्या क्या कॉम्बिनेशन है हमने, जे क्यू जी, ठीक है, जे ओनली, क्यू ओनली, जी ओनली, और देन देयर इज जे क्यू. एक सेकेंड, कहाँ से स्टार्टिंग है, हाँ क्यू जे क्यू जी, ऑर्डर में ही लिखते हैं सो दैट बाद में कंफ्यूजन नहीं हो. So the order is QJ is 2 less than QG and QG is 2 less than JG. तो JG से छोटा है QG और QG से छोटा है QJ. ओके, एंड द डिफरेंस इज ऑफ 2 का डिफरेंस है. JG -2 is QG because total number of QG types are 2 less than JG and QJ is 2 less than QG. क्लियर? सो ये हमारा कॉम्बिनेशन बना. एंड देन इट इज गिवन दैट एक ऐसा है, वन इलेक्टिव इज मेंबर ऑफ ऑल, यानी JQG तीनों में है. ठीक है, वो मेंशन नहीं है यहाँ पे बट पीछे ऑलरेडी मेंशन है कि वन कॉमन इलेक्टिव JQG अक्रॉस ऑल 3 कैटेगरीज. ओके, सो इफ दिस इज J category, this is Q category and this is G category. Now we also know total 20 है, total 20 होना है. 1 तो हमारा बीच में आ गया, सब में जो कॉमन है. ठीक है, now क्या क्या वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं J, G, QG और QJ में. वी नो कि मिनिमम 1 तो आना चाहिए, तो QJ पे अगर हम 1 फिल करें so this will be equal to 3 and this will be 5. 1, 3 and 5, this could be a combination. Isn't it so? टोटल आना है 20, टोटल 20 आना है, बट 20 में ये 1 भी इंक्लूडेड है. ठीक है, तो इस 1 को एक सेपरेटली कंसिडर कर लें. टोटल हमें 19 चाहिए बेसिकली. इस 1 को हटा दो तो बाकी जो कैटेगरीज बची, बाकी 6 कैटेगरीज में टोटल 19 होना चाहिए. तो 5 + 3 8 + 1 9, 9 तो ये वैल्यू आ गई, 9 तो ये वैल्यू आ गई, यानी कि अब बचा जो 10 का सम है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी 3 कैटेगरीज में. एंड इट हैज ऑल्सो बीन गिवन दैट ओनली क्यू इलेक्टिव्स, ठीक है, ये सिर्फ ओनली की बात करें, ओनली क्यू इलेक्टिव इज सेम एज ओनली जे. तो only Q and only J are same but less than only G, but these are less than only G, so that is also there. 10 तो हम 5 3 8 1 9 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. 10 बचा है डिस्ट्रीब्यूट करने को, तो 10 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें सो दैट G में ज्यादा मिले और J और Q में इक्वल हो. कैन बी 1 1 and 8.
और 2 2 एंड 6, ठीक है, यहाँ पे 5 3 1 ही रहेगा, और 3 3 एंड 4. सो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जबकि जे जी, क्यू जी और क्यू जे में 5 3 और 1 है रिस्पेक्टिवली, बट ये अकेला पॉसिबिलिटी तो नहीं है. क्यू जे में मिनिमम 2 भी हो सकता है, एंड इफ दैट इज 2, दिस विल बी 4, दिस विल बी 6, 2 4 एंड 6, और 2 4 और 6 हो जाएगा, यानी कि 6 + 4 इज 10, 10 + 2 इज 12. टोटल चाहिए 19, यानी बचा 7, 7 बचा है. सो अगर हमने 1 और 1 लिया तो 5 यहां पे लेना पड़ेगा. 19 इसलिए ले रहे बिकॉज 1 हम ऑलरेडी सेंटर में फिलअप कर चुके हैं. क्लियर है? सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है 1 1 5 के अलावा? 2 2 एंड 3, दैट इज ऑल्सो परमिसिबल बिकॉज लेस देन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है. 2 2 3, और यहां तो 6 4 2 ही रहेगा. इससे बड़ा करोगे, 3 करोगे तो फिर पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट फिर से एक बार क्यूजे को चेंज करते हैं. 1 हो गया, 2 हो गया, क्या 3 हो सकता है? 3 हुआ, 3 पे दिस विल बी 5, दिस विल बी 7, 7 + 5 + 3 दैट इज 12 + 3 15. टोटल चाहिए 19, तो 1 1 2, दैट कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी देयर. तो टोटल हमारे 6 कॉम्बिनेशन बन गए. ओके, 1 1 8, 5 3 1, 2 2 6, 5 3 1 एंड सो ऑन. ये सारे कॉम्बिनेशन हमने बना लिए जो पॉसिबल केसेस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन हर वे बैक सिमरन met her friend Raj and shared the above information. Raj is preparing for ZAT and is only interested in grade oriented electives. His only focus is on grade oriented electives, G electives. He wanted to know the number of G type electives being offered. Simran replied, you have all the information. Calculate the number of G type electives yourself. It would help your ZAT preparation. Raj calculates correctly and says that there can be, now we have to fill the blanks, possible answers. Which of the following options would best fit the blank above? 3 5 8 9 11. ठीक है, हमारे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकले हैं? टोटल कॉम्बिनेशंस निकले हैं 6 कॉम्बिनेशंस निकले हैं. Isn't it so? टोटल 6 कॉम्बिनेशंस निकले हैं. बट ऑप्शन में तो कहीं भी 6 आ नहीं रहा है. और क्या इसको देख के सीधे ऑप्शन में 6 मार्क कर दोगे? क्योंकि हमने ये जो कॉम्बिनेशंस निकाले हैं ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं. बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि जी टाइप इलेक्टिव्स के कितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, यानी जी टाइप इलेक्टिव्स कितने हो सकते हैं. सो हमें जी टाइप इलेक्टिव्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्या क्या आएगा जी टाइप इलेक्टिव में? जी, ओनली जी वाले जी टाइप इलेक्टिव में ओनली जी आएगा, इंक्लूड होगा. देन जे जी इंक्लूड होगा, क्यू जी इंक्लूड होगा, और जे क्यू जी इंक्लूड होगा. ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्या क्या पॉसिबल सम बन सकते हैं हमारे. फर्स्ट केस में सम क्या बनेगा? जे जी प्लस क्यू जी, यानी 5 + 3 8 + 8 16 + 1 17. तो फर्स्ट केस में 17 पॉसिबिलिटी बनेगा, 17 सम बनेगा हमारा फॉर जी टाइप ओनली, फॉर टोटल जी ओनली नहीं, फॉर जी टाइप इलेक्टिव्स. ठीक है, सेकेंड केस में क्या बनेगा? सेकेंड केस में दिस विल बी 5 + 3, अगेन यहां तो 8 है, 8 + 6 14 + 1 15. लास्ट में 1 जरूर ऐड करना है. थर्ड केस में 5 + 3 8, 8 + 4 12 + 1 13. 3 कॉम्बिनेशन बन गए हमारे. फोर्थ केस में 6 + 4 10 + 5 15 + 1 16. देन 6 + 4 10 + 3 13 + 1 14. एंड देन 7 + 5 12 + 2 14 + 1 15. बट 15 ऑलरेडी आ चुका है, तो इस केस में भी 15 आएगा, यानी कि टोटल पॉसिबल आंसर्स हमारे 5 होंगे. टोटल पॉसिबल आंसर्स विल बी 5 17 15 13 16 14. टोटल 5 पॉसिबल केसेस हैं. ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग सिमरन, बाकी ऊपर की कहानी बिल्कुल सेम है, वहां पे कुछ बॉदर नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग सिमरन प्रेफर्स जे टाइप इलेक्टिव्स and wants to avoid Q type electives. She noted that the number of only J type selectives is 3. Raj's preference is G type electives followed by Q types.
यानी कि सिमरन की प्रेफरेंस ये है कि जे टाइप इलेक्टिव तो मिले उसको और क्यू टाइप इलेक्टिव नहीं चाहिए उसको। ये तो सिमरन का केस है। और राज, जा सिमरन जा, राज, ठीक है। तो राज कह रहा है, राज की प्रेफरेंस है जी टाइप इलेक्टिव बट क्यू टाइप इलेक्टिव सेकंड प्रेफरेंस है। तो राज को या तो जी टाइप चाहिए या क्यू टाइप चाहिए, बट मोस्ट प्रेफर्ड क्या है, जी, एंड देन सेकंड प्रेफरेंस इज क्यू। यानी कि अगर जी टाइप इलेक्टिव मिल रहा होगा तो वो क्यू टाइप इलेक्टिव को सेलेक्ट नहीं करेगा, वो जी टाइप को ही सेलेक्ट करेगा, ठीक है। हाउएवर दे वांट टू नो, और कुछ कॉमन भी होंगे, जो कॉमन होंगे वहां पे कोई इसको इशू नहीं है, वहां पे न्यूट्रल है, बिकॉज जी टाइप भी है और क्यू टाइप भी है, वेल एंड गुड, दोनों ही मिल रहा है। हाउएवर दे वांट टू टेक एज मेनी कॉमन इलेक्टिव्स एज पॉसिबल। तो राज और सिमरन को क्या है, दोनों को कॉमनैलिटी चाहिए, जितने कॉमन इलेक्टिव ले सके उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा उनको। राज और सिमरन, यू नो फ्रॉम द मूवी, का नाम तो याद नहीं आ रहा मूवी का, एनीवे नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। However, they want to take as many common electives as possible. तो common elective चाहिए उनको. What is the maximum number of electives that can be common between them without compromising their preferences? पहली चीज ये है, हमें ये चेक करना है कि इन 6 पॉसिबिलिटीज में से कौन सा पॉसिबिलिटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करेगा। तो उसके लिए हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट शी नोटेड दैट द नंबर ऑफ ओनली जे टाइप इलेक्टिव्स इज 3. ओनली जे टाइप इलेक्टिव्स इज 3. तो कहाँ पे ओनली जे टाइप 3 आ रहा है? डेफिनेटली एक ही केस में आ रहा है, दिस इज द केस, ठीक है। सो फटाफट से ये डायग्राम बना लेते हैं अपना for this particular case. J, Q, G, 1 फिलअप हो गया बीच में. Then we know J only, Q only, G only, 3, 3, 4, 3, 3 and 4. And then JG is 5, JG is 5, QG is 3 and QJ is 1. QG 3, QJ 1. So ये सारी वैल्यूज हमारी फिलअप हो गई. So at last we know सिमरन को क्या चाहिए? सिमरन नीड्स J टाइप इलेक्टिव्स बट डू नॉट वांट Q टाइप इलेक्टिव्स. J टाइप इलेक्टिव चलेगा सिमरन को बट Q टाइप इलेक्टिव नहीं चाहिए, wants to avoid that, ठीक है. तो ये सिमरन की प्रेफरेंस है. एंड फॉर राज, ही वॉन्ट्स G टाइप इलेक्टिव्स फॉलोड बाई Q टाइप. हाँ, G और Q दोनों होगा तो भी उसको चलेगा. तो सिमरन के लिए केस क्या होगा? सिमरन, ये इलेक्टिव सिमरन के काम के हैं, isn't it so? बिकॉज Q के बाहर चाहिए उसको, Q नहीं चाहिए, Q अवॉइड करेगी. सो दीज 8 इलेक्टिव्स आर प्रेफरेबल फॉर सिमरन. सिमरन को चलेंगे ये 8 इलेक्टिव्स, क्लियर है, बिकॉज सारे के सारे 8 J टाइप इलेक्टिव्स हैं. बट फॉर राज, G टाइप फॉलोड बाई Q टाइप, यानी कि राज के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? G टाइप फॉलोड बाई Q टाइप. बट हमें साथ में ये भी चाहिए दैट दे शुड हैव एज मेनी कॉमन इलेक्टिव्स एज पॉसिबल. तो सिमरन की प्रेफरेंस है J, राज की प्रेफरेंस है G. तो J और G में जो कॉमन है दोज दे विल बी पिकिंग अप फर्स्ट. तो मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं? 5. ऑप्शन सी. इज इट क्लियर? मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं उनके बीच में 5 इलेक्टिव्स, टोटल 7 है, तो कोई कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है. क्वेश्चन 2 भी हमने सॉल्व कर लिया, डन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग विजय एंड राज want to avoid each other. Vijay is interested in J type electives and wants to avoid Q type electives. तो विजय को J चाहिए, J type elective चाहिए, J type चाहिए बट Q type नहीं चाहिए. राज की प्रेफरेंस वही है, G followed by Q. राज noted that the number of G type electives is 2. यानी कि इस बार नई इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ जी टाइप इलेक्टिव्स इज 2. इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट दे वुड नॉट शेयर एनी कॉमन इलेक्टिव? इज इट पॉसिबल और नॉट? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. तो नंबर ऑफ ओनली जी इज 2. कौन सा केस बनेगा? ओनली जी इज 2. सो लास्ट केस बन रहा है हमारा. फिर से एक बार वैल्यूज को फिलअप कर देते हैं, फिर ही सॉल्व कर पाएंगे इसको. जे, क्यू एंड जी कॉमन आ गया बीच में 1. And we know that only G is 2. Only J and only Q is 1. And then JG is 7. JG is 7. QG and QJ are 5 and 3. QG 5 and then 3. QG 5 and then 3. QG is 5 and then 3. तो सारी वैल्यूज हमारी फिलअप हो गई. अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं. सो द क्वेश्चन इज सेइंग
कि विजय को चाहिए जे टाइप इलेक्टिव, क्यू टाइप इलेक्टिव उसको नहीं चाहिए, यानी विजय के काम के इलेक्टिव्स हैं ये सारे, और राज को चाहिए जी टाइप इलेक्टिव फॉलोड बाई क्यू टाइप इलेक्टिव, तो जी टाइप इलेक्टिव उसको चलेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो दोनों के दोनों अपने 7 इलेक्टिव्स को सेलेक्ट कर ले और कोई भी इलेक्टिव इनमें कॉमन ना हो? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबिलिटी हमको एडेयर करना है, अगर पॉसिबल हो तो इजंट इट पॉसिबल? ये सारे के सारे 7 इलेक्टिव्स हो गए, ये इलेक्टिव्स राज सेलेक्ट कर ले, एंड अमंग दीज 8 वैल्यूज एनी 7 कैन बी सेलेक्टेड बाय विजय, और यहां पे कोई भी एक कॉमन नहीं होगा। सो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर? So yes, this is definitely possible in this case, as we've discussed. Okay, so that is all for this particular set. अब दूसरा सेट करते हैं। क्या है, सारे क्वेश्चन समझ में आए? सेशन में मजा आ रहा है, समझ में आ रही चीज़ है? ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समझना। सेट थ्योरी में भी हमारा डिवीजन हो रहा है एक तरह से, इनफैक्ट वही है सेट थ्योरी, तो और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट इज फ्रॉम Z 2015। और इसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इनफैक्ट एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, बाकी तो 2 क्वेश्चंस जनरल डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। अ फ्यू ईयर्स बैक मिस्टर आर्बिट एंड मिस्टर बोरिंग स्टार्टेड एन ऑयल रिफाइनरी बिजनेस। They started an oil refinery business a few years back. Their annual earning is currently just 50,000 million rupees. They are now exploring various options. अब ये देखो 50,000 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट है, बट उनके लिए जस्ट 50,000 मिलियन रुपीज़ है, बिकॉज दे आर इनटू ऑयल रिफाइनरी बिजनेस विच इज अ लार्ज बिजनेस, अ बिग बिजनेस। ठीक है, दे आर नाउ एक्सप्लोरिंग वेरियस ऑप्शंस टू इम्प्रूव द बिजनेस। मिस्टर जनाडू, a salesperson from Innovative Technologies Solutions, is trying to sell a new oil refinery technology to Mr. Arbit and Mr. Boring. This technology could potentially enhance their annual earnings to 1,50,000 million rupees within a year. They can enhance their annual earnings to this value within a year. But they have to make one-time investment of 1 lakh million rupees to implement the technology. तो 1 लाख मिलियन रुपीज़ का एक कॉस्ट भी है जो उनको वन टाइम इनकर करना है, इन्वेस्टमेंट है जो इनकर करना है। इफ द टेक्नोलॉजी इज नॉट सक्सेसफुल द इन्वेस्टमेंट वुड बी लॉस्ट। नाउ दिस इज द एक्चुअल कंसर्न। जो प्रॉब्लम है पूरे के पूरे पैसेज का वो ये लाइन है कि इफ इट इज नॉट सक्सेसफुल देन इन्वेस्टमेंट वुड बी लॉस्ट एंड probably there is not certainty about it. तभी तो ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि if the technology is not successful investment would be lost. Mr. Arbit and Mr. Boring are discussing about possible risk of investment, कि करें कि ना करें। 1 लाख मिलियन लगा दिया, नहीं काम किया, डूब जाएगा। काम कर गया तो बढ़िया है, तो बढ़िया है कि 1 साल के अंदर उनका जो एनुअल अर्निंग है दैट विल इनहैंस टू 1,50,000, यानी कि 1 लाख मिलियन रुपीज़ का उनको बेनिफिट हो जाएगा 1 साल के एंड में, अगर सक्सेसफुल रहा तो। और फिर नेक्स्ट ईयर से भी वो अर्निंग उनका इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। सो दैट इज गुड इफ सक्सेसफुल, बट इफ नॉट देन 1 लाख मिलियन रुपीज आर गॉन। और एनुअल अर्निंग्स उनका 50 लाख मिलियन रुपीज है, 50,000 मिलियन रुपीज है, यानी कि 2 साल का जो एनुअल अर्निंग है उनका, 2 साल का जो अर्निंग है वो पूरा का पूरा उनका रिस्क है। वो रिस्क में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तब उनका टेक्नोलॉजी वो ले पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर आर्बिट इज एंथुजियास्टिक about this investment idea. He is very enthusiastic. He wants to implement that possibly. But Mr. Boring is a little skeptical. He is a little skeptical. This impasse makes them approach a consultant. The consultant makes some observations. Which of the following observations made by the consultant might reduce Mr. Arbit's enthusiasm for the new investment idea? So हमें वो ऑप्शन चूज करना है which will reduce Mr. Arbit's enthusiasm, यानी कि वो ऑप्शन जो कि मिस्टर बोरिंग को सपोर्ट करे, या मिस्टर बोरिंग को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मिस्टर आर्बिट का जो एंथुसियाज्म है वो कम हो जाए, यानी कि निगेटिव हो, इन्वेस्टमेंट आइडिया के अगेंस्ट हो, कि जो इन्वेस्टमेंट करोगे तो भाई फायदा नहीं रहेगा तुम्हारा, समहाउ देख लो कुछ रिस्क है, कुछ चांस है, कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ समहाउ एंथुसियाज्म कम हो जाए मिस्टर आर्बिट का। ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज सेइंग इन्वेस्टमेंट इज वारंटेड ओनली व्हेन बेनिफिट आउटवेज कॉस्ट्स। इज दैट इज गुड। इन्वेस्टमेंट इज वारंटेड ओनली व्हेन बेनिफिट्स आउटवे कॉस्ट्स। इस केस में क्या हो रहा है, कॉस्ट क्या है 1 लाख मिलियन रुपीज, एंड वी आर स्टिल नॉट सर्टेन अबाउट द बेनिफिट्स, बिकॉज बेनिफिट्स तब आएंगे जबकि सक्सेसफुल होगा। ठीक है, सो दैट्स ओके 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 ओके, नॉट वेरी निगेटिव बट और पॉजिटिव तो डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, बिकॉज बेनिफिट्स आउटवे कॉस्ट और नॉट, दैट वी डू नॉट नो। अभी तो पता ही नहीं है कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वी आर नॉट सर्टेन। सो यस, दिस इज अ कॉशियस स्टेटमेंट, सो वील पुट इट ऑन होल्ड। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट गिव्स हायर अर्निंग्स इन फ्यूचर। Now this is a positive statement as such.
ऑलरेडी मिस्टर आर्बिट एंथुसियास्टिक है, उसको ये सजेशन देगा कंसल्टेंट दैट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट गिव हायर अर्निंग्स इन द फ्यूचर, तो दिस विल गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आंसर तो नहीं होगा, आंसर हमें वो चाहिए जो कि रिड्यूस करे एंथुसियाज्म को, तो दिस इज नॉट द आंसर। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, अगेन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इन सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो दिस विल नॉट बी द आंसर। ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजी रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी कंट्रोल्ड, यानी कि जो रिस्क है वो उतना बड़ा रिस्क नहीं है, रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो फिर मिस्टर आर्बिट का एंथुसियाज्म और बढ़ जाएगा कि बल्ले बल्ले बढ़िया बात है। तो आंसर तो नहीं होगा ये भाई। ऑप्शन ई, बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्की डिसीजंस, यानी कि डर के आगे जीत है, ठीक है, तो रिस्क ले लो। अगेन he is already enthusiastic, Mr. Arbit is already enthusiastic about the investment idea and he is saying that business is all about taking risky decisions, डर के आगे जीत है तो रिस्क ले डालो। तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, नहीं चाहिए ना ऐसा, रिड्यूस करना है उसका एंथुसियाज्म, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि रिड्यूस कर सकता है पॉसिबली, ठीक है, बहुत ज्यादा रिड्यूस करेगा नहीं करेगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट among the given options only option A is that option which can reduce the enthusiasm, so hence option A will be the answer, ठीक है। वी आर नॉट वेरी सर्टेन कि बेनिफिट्स आउटवे करेगा कॉस्ट को या लेस जाएगा, बट दिस स्टेटमेंट ए इज डेफिनेटली कॉशनिंग हिम, और बाकी सारे स्टेटमेंट तो पॉजिटिव हैं, तो ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू सेल द टेक्नोलॉजी टू मिस्टर आर्बिट एंड मिस्टर बोरिंग, मिस्टर ज़नाडू इज थिंकिंग ऑफ 5 possible sales pitches. So there are 5 possible sales pitches, among which one has to be selected by Mr. Zanadu, and he is thinking about those sales pitches. The question is, which of the following sales pitches would reduce uncertainties the most for Mr. Arbit and Mr. Boring? तो ऐसी sales pitch हमें select करनी है which will reduce uncertainties the most. Okay. So uncertainties सबसे कम हो जाए जिस ऑप्शन से, that will be our answer. Option A is saying all other competitors are aggressively investing in risky technologies. All other competitors are aggressively investing. But अगर बाकी सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमको भी करना चाहिए? Is it so? ये किस तरह से उनकी अनसर्टेनिटीज को कम कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है reducing uncertainties the most. तो is the statement A, option A, reducing uncertainties the most for Mr. Arbit and Mr. Boring, is it even reducing uncertainties? It is not. It is not doing anything worthwhile towards that गोल। तो डेफिनेटली हमारा जो गोल है रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज, उसकी डायरेक्शन में ऑप्शन ए नहीं जा रहा है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं तो तुम भी करो, डज नॉट मेक मच सेंस, दो इट डज मेक सम बिट ऑफ सेंस, बट इट इज नॉट रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज फॉर श्योर, तो आंसर तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, इफ द टेक्नोलॉजी सक्सीड्स, इफ इट सक्सीड्स, इफ इज इंपॉर्टेंट, इफ सक्सीड्स द एनुअल अर्निंग्स वुड ग्रो 3 times फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर and they would be able to recover the invested money within 1 year. But problem यहाँ पे क्या है? If. हमें क्या करना है? If को हटाना है, reduce करना है uncertainties को, but यहाँ तो if आ गया ना, if है, if बड़ी बात है, नहीं पता। If अब succeed करेगी नहीं करेगी, चांस है, गेम ऑफ चांस, चांस वी डू नॉट नो, तो इसको होल्ड पे रखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन सी, preliminary studies indicate that success rate of the technology is 85%. Now this is something which is talking about a number. Specifically एक नंबर दे रहा है कि 85% चांस है कि टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होगी। Now this is reducing the uncertainty by how much? 85% सक्सेस रेट है, तो एक डेफिनेट चांस है कि टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होगी, तो दिस इज डेफिनेटली रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटीज। बस बट इससे बेटर कोई ऑप्शन होगा तो उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शंस बाकी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी, R&D टीम ऑफ ITS इज वर्किंग टू काउंटर एनी पॉसिबल डाउनसाइड ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये पॉसिबल डाउनसाइड, यानी कि खतरा है, डेंजर है, बता रहा है ये, ठीक है, कि देयर कुड बी अ पॉसिबल डाउनसाइड एंड ITS इज वर्किंग टू काउंटर, तो यानी कि दे आर ट्राइंग वर्किंग, बट सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता, ये काउंटर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दैट इज क्वेश्चनेबल, वी डू नॉट नो। So not reducing uncertainty is definitely option D will not be the answer. Option E, business is all about taking risky decisions. डर के आगे जीत है, तो ये कोई अनसर्टेनिटी कम थोड़ी कर रहा है, तो बता रहा है कि अनसर्टेनिटी है भैया, कूद जाओ, कूदने के बाद देखो कि पैराशूट साथ में लियो कि नहीं लियो, ठीक है। डज नॉट मेक सेंस, ऑप्शन ई विल नॉट बी द आंसर, ई विल नॉट बी द आंसर, डी विल नॉट बी द आंसर, ए विल नॉट बी द आंसर, बचे बी और सी। बिटवीन बी एंड सी, बी में भी क्या कह रहा है, इफ की बात कर रहा है, इफ पता नहीं, वी डू नॉट नो हाउ मच
चांस इज देयर, हाउ मच परसेंटेज चांस इज देयर, वी डू नॉट नो कि टेक्नोलॉजी के सक्सीड करने का चांसेस कितना है, बट ऑप्शन सी में देयर इज अ डेफिनेट परसेंटेज गिवन, दैट इज 85%. डेफिनेटली ऑप्शन सी इज मच मच ग्रेटर देन ऑप्शन बी. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी फॉर श्योर. अपनी अनसर्टेनिटी कम हो गई इससे. ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर श्योर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज मिस्टर आर्बिट एंड मिस्टर बोरिंग. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ, मिस्टर आर्बिट एंड मिस्टर बोरिंग डिड नॉट इन्वेस्ट इन द न्यू टेक्नोलॉजी, बट द न्यू टेक्नोलॉजी इज अ बिग सक्सेस. उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट न्यू टेक्नोलॉजी इज अ बिग सक्सेस. रिपेंटेंट, दे आर नाउ एस्टिमेटिंग दैट एडिशनल अमाउंट दे वुड हैव अर्नड. अब वो गिनती कर रहे हैं कि कितना उतना अमाउंट वो अर्न कर सकते थे, बट वो चला गया, नुकसान हो गया उनको. फोरगोन अर्निंग्स दे आर कंसर्न अबाउट, एंड हैड दे इन्वेस्टेड इन द न्यू टेक्नोलॉजी. However, the two owners differed on expected lifespan of technology. So they are differing on the expected lifespan of the new technology. Mr. Arbit expected lifespan of 5 years. Mr. Arbit को लगता है कि 5 साल का लाइफ स्पैन होता. Mr. Boring को लगता है expected lifespan to be 2 years. After technology gets outdated, the earnings from the business would drop back to where they started, 50,000 million rupees. तो जो लाइफ स्पैन होगा उसमें क्या होगा, स्टार्ट में ही कहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से उनका जो अर्निंग है दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 1,50,000. 1,50,000 हो जाएगा, 1,00,000 मिलियन रुपीज उनको एक्स्ट्रा मिलना चालू हो जाएगा. जितना लाइफ क्या हो गया है, मुझे थोड़ा सा आई गेस एग्जॉस्शन है, दैट इज वाई. ओके, सो बियर विद मी. ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ स्पैन मिस्टर आर्बिट के हिसाब से विल बी 5 years, बट मिस्टर बोरिंग के हिसाब से इट विल बी 2 years. और जो लाइफ स्पैन होगा, जितने पीरियड तक इन्वेस्टमेंट चलेगा, उतने पीरियड तक उनको क्या बेनिफिट होगा, 1,00,000 मिलियन रुपीज का हर साल बेनिफिट होगा. एवरी ईयर दे विल बी बेनिफिटेड बाई एक्स्ट्रा रेवेन्यू ऑफ 1,00,000 मिलियन रुपीज. इजंट इट सो? मिलियन रुपीज को भूल जाओ, 1,00,000 पे फोकस करते हैं. बेसिकली 1,00,000 मिलियन रुपीज का उनको बेनिफिट होगा एवरी ईयर. आर्बिट के हिसाब से ऐसा बेनिफिट उनको 5 years तक होगा. 5 years का लाइफ स्पैन है, एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर बोरिंग दैट विल बी फॉर 2 years ओनली. And the question is saying what would be the difference between two expected foregone earnings after 5 years of the technology investment if yearly earnings are deposited in a bank at the rate of 10%. Difference क्या होगा, difference के बारे में पूछ रहा है. Now think about it. मिस्टर आर्बिट के हिसाब से 5 साल तक ये कहानी चलेगी, तो 5 years में क्या कहानी होगा, पहले साल भी 1,00,000 मिलियन रुपीज का बेनिफिट, नेक्स्ट ईयर भी, देन नेक्स्ट ईयर, देन नेक्स्ट ईयर, देन नेक्स्ट ईयर. एंड फॉर मिस्टर बोरिंग दिस इज द लाइफ स्पैन इज ओनली 2 years. तो पहले 2 साल तो दोनों का सेम है कहानी. अब ये जो 1,00,000 रुपीज इनिशियली, 1,00,000 मिलियन रुपीज इनिशियली जो बैंक में डिपॉजिट करेगा, उस पर एंड में तो वही सेम अमाउंट मिलने वाला है दोनों को, मिस्टर आर्बिट को भी, मिस्टर बोरिंग को भी. इजंट इट सो? तो ये तो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा. सिमिलरली फॉर दिस 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 मिलियन रुपीज अमाउंट, यहाँ पे भी ये भी सेम ही मिलेगा एंड में, दोनों केसेस में, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है. टाइम पीरियड सेम है, ठीक है. तो अगर 5 years के बाद में हम देख रहे हैं, 5 years के बाद में देख रहे हैं, तो इन दोनों पे तो सेम ही मिलने वाला है. हमारा डिफरेंस क्रिएट होगा सिर्फ और सिर्फ इन 3,00,000 मिलियन रुपीज की वजह से. तो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, बाकी सबको भूल जाओ. अननेसेसरी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी है हमको, ठीक है. अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही नहीं, इनको कैलकुलेट नहीं करना है. वी विल ओनली कैलकुलेट फॉर दीज 3,00,000 रुपीज, 3,00,000 मिलियन रुपीज. सो फर्स्ट 1,00,000 मिलियन रुपीज कितने साल के लिए इन्वेस्ट होगा, कितने साल के लिए होगा, फॉर 2 years, बिकॉज 3rd ईयर के एंड में मिल रहा है और 5th ईयर के एंड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 years के लिए इन्वेस्ट होगा. तो कितना अमाउंट मिलेगा इस पे, 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, इजंट इट सो? तो 2 years में हो जाएगा 21%, यानी कि दिस विल बिकम 1,21,000 मिलियन रुपीज, यानी कि 1.21 lakhs. दिस 1,00,000 रुपीज विल बी इन्वेस्टेड फॉर 1 year, तो इस पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो दिस विल बिकम 1.1 lakhs. और ये तो एंड में ही मिल रहा है, तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा. टोटल आ गया हमारा 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1, 3.31 लाख मिलियन रुपीज. सो दिस इज द डिफरेंस between their expected earnings, expected foregone earnings. Option B will be the answer. Is it clear? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. So these are the 2 sets in this particular session. I believe कि सेशन आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और
कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर फिर भी कोई डाउट रहा है किसी क्वेश्चन में तो यू कैन ऑलवेज कमेंट फॉर दैट अबाउट दैट। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट एग्जामिनेशन। अभी 1-2 सेशन और लेंगे, ठीक है? सो होल्ड योर हॉर्सेस और दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय।